Session 6 of this conference, which is Media's Effectiveness in Informing and Influencing Societies in Climate Action. Are media giving enough space? So, we heard in the last session the role of spiritual organizations in sensitizing people on climate change. And now we're going to hear from journalists, people from the field of media, about their role, and the question that we pose to them is, are they giving enough space for issues related to climate change and climate action in media platforms? For this session, I would like to first invite Professor Solanki up on the stage to moderate this session. Professor Solanki, may I request you to please join us on the stage? And then I request our speakers, Mr. Bobbin Abraham from India Times journalist, a media professional with over 9 years of industry experience, worked with various platforms including online and TV. He has reported extensively on South Asia for the American audience. Currently working as a content creator, news with IndiaTimes.com, where he reports on news items mostly from India with the youth population in mind. The nature of his work also includes ground reporting and doing video packages on various news and features. Welcome, sir, on the stage. May I request you to please take a seat. Next, I would like to invite Mr. Mayank Agarwal. He's an independent journalist. Mayank is a journalist based in Delhi with experience of over 17 years in print and online media. He has written extensively on intersection of environment, energy, natural resources, forests, indigenous communities, water, mining, diplomacy, politics, business, community rights, and social issues. He has closely tracked the systemic dilution of environmental norms by successive governments in India. He has worked for the Statesman, Indo-Asian News Service, DNA, Mint, Mongabay India, The Independent, and Al Jazeera. Welcome, sir. Thank you for joining us on the stage. Next, I invite Mr. Hitesh Joshi. He's an independent journalist. Hitesh Joshi ji is a senior editor, national affairs with the India's premier Hindi news channel NDTV India. He was the first to reach Kedarnath Shrine after the calamity which hit Uttarakhand in 2013. Hitesh Joshi has been awarded twice by the most prestigious Ramnath Goenka Award for Excellence in Journalism. Welcome, sir, on the stage. Thank you for all the speakers joining on stage. May I request the team and Professor Solanki to please welcome all the guests. May I please have a round of applause for all the speakers today. Thank you, everyone. People who are just joining in, please get seated. Before we dive into the session, and I request Professor Solanki to start his session, may I request the technical team to please place an audio visual. All right, good afternoon, everyone. Good afternoon. I hope we are all enjoying this discussion about are we taking enough action, and that's a big million, billion, trillion dollar question that we are putting it forward. Before I start the panel discussion, I would request to play a small video. Can you play the video, please? Sound. You okay? You need a minute? Cool. Okay.
Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct in 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. All right. Can you put some lights? How many of you would like to get extinct from this planet? No? Nobody, but Frankie, the dinosaur got extinct. You know? And it was not a mistake of dinosaur. You know, something happened on the planet and the climate of the planet has changed at that time and dinosaur is no more. I don't know why humans are behaving in a manner that we are behaving, that it is leading and directing us towards possibility of not existing on this planet. So this particular session is about the media, and we are going to discuss the media's effectiveness in informing and influencing societies in climate correction. Are the media giving enough space is what we'd like to discuss. So just for the benefit of audience and for the panelists, once again, let me put the perspective very clear. What you see is these 4 bags, each is 50 kilograms, and total they are 200 kilograms. 200 kilogram is the carbon dioxide that every person emits per month. It's a per capita per month emission that we are doing in the country like India. On the top of it, there is a climate clock, and that climate clock clearly tells us how much time is left before the global warming touches to 1.5 degrees centigrade. And at 1.5 degrees centigrade, no disaster will happen, but the climate change will start to become irreversible. We also know that the rivers are polluted, air is polluted, water is polluted, soil is polluted. And this is, everybody can experience. And I asked in the morning, have you experienced the weather system has changed? The answer is yes, very much it has changed. Now, the question to media is, when Alia Bhatt gets pregnant, everybody knows it. When Priyanka Chopra ko छींक आती है तो सबको पता चलता है. बट एक ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड होने में सिर्फ 6 साल बाकी है, 6.5 साल बाकी है. Why everybody doesn't know? That is a question I would like to put forward, So media only needs masala, or bina masala also media can work? So why the media is, failing so much to let people know that 1.5 degree centigrade is a really dangerous mark in terms of the global warming. Ridheshji, I would like to go with you first. Why media is failing, or if you at all consider that media is failing or not, and whether media can work without masala or not. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए. आई वुड लाइक टू स्पीक इन हिंदी बिकॉज प्रॉब्लम ऑफ मीडिया इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स द काइंड ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग. ये इस बात पे भी बहुत कुछ निर्भर है कि मीडिया नहीं दिखा रहा है. वो एक ज़माना था जब खबरों का न छपना खतरा था. खबरों का प्रकाशित होना खतरा है, क्योंकि जो चीज़ें स्पेस ले रही हैं मीडिया में, दे आर मोर डेंजरस. आई क्विट टेलीविजन इन 2018. And I do not watch television since 2015. It means for 3 years when I was working and earning my livelihood from television,
एंड दैट टू फ्रॉम ए चैनल जिसके बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी जन सरोकारी पत्रकारिता करते हैं, तब भी मैं टेलीविज़न नहीं देख रहा था. वी वर करोडिंग सो मच. सो जो आपने बातें कही उससे बड़े खतरे ये हैं कि हमारे सोचने का तरीका क्या है. क्योंकि अगर आपके पास कहने के लिए बात है, यहाँ पर काफ़ी यंग स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वही एक चीज़ है जो मुझे उत्साहित कर रही है बोलने के लिए, बिकॉज दे आर द फ्यूचर एंड दे आर मोर रिसेप्टिव. तो इस लिहाज से मैं अपने ओपनिंग कमेंट में ये कहूँगा कि हमको इस चीज़ को देखना चाहिए कि बहुत सारा स्पेस अभी खुला हुआ है. मैंने खुद रेगुलर एक टेलीविज़न की पत्रकारिता छोड़ने के बाद इंडिपेंडेंटली राइटिंग करने से ये महसूस किया, और उसमें मयंक अग्रवाल जैसे दोस्तों का काफ़ी योगदान है, कि स्पेस की कमी नहीं है अगर आप लिखना चाहते हैं. लेकिन जो यहाँ पर बच्चे लिखना शुरू करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें अपनी बात को लोगों तक पहुँचाना बहुत बड़ी चीज़ है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज़ टू कम्युनिकेट समथिंग विच इज़ नॉट अटर्ड, विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड. इसलिए जो वीडियो हैं वो इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं. आई विल टॉक वेरी प्रैक्टिकली. वीडियो इसलिए इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं क्योंकि एक लिखे हुए आर्टिकल को अंग्रेज़ी में विच इज़ रिटन वेरी, और मैं उसकी इंपॉर्टेंस को कम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारे वीडियोज जो हैं वो लिखे हुए आर्टिकल से ही बनते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन इज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स वेयर टेलीविजन इज़ सो पावरफुल. टीवी जो मीडियम है वो इतना पावरफुल इसीलिए था. एक छोटी सी कहानी के साथ बात कहूँगा कि एक बार वर्ल्ड कप, वो कौन सा कप था मुझे मालूम नहीं, क्रिकेट वर्ल्ड कप में रिकी पॉन्टिंग की टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता और शरद पवार बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने पुश किया था. रिकी पॉन्टिंग ने स्टेज से हटा दिया था और वो सेलिब्रेट किया. तो उसको टेलीविजन ने उस 2 मिनट की क्लिप को चला चला के इतना बड़ा बवाल खड़ा किया कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो अपने देश वापस लौट चुकी थी उनको माफ़ी मांगनी पड़ी. सो दिस इज पावर ऑफ टीवी. इज ए शैलो बट वेरी पावरफुल मीडियम. तो इसलिए वीडियो इतना महत्वपूर्ण हो रहा है. मैं आगे आने वाले बताऊंगा. तो फेलियर की बात जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है. वो फेल हुए हैं लेकिन नए आकाश, नए अपॉर्चुनिटीज़ वो खुली हैं, और मुझे लगता है हमें उनके बारे में भी बात करनी चाहिए. बिल्कुल. Maybe next question, same question I'll ask Mayank ji also. Is really media needs masala and without it cannot work, or issues and as sensitive as this? And that's why I showed the video of Frankie, that when we are talking about the possibility, and that is non-zero possibility of human extinction, why still the media is not covering the topic, and why people do not know that 1.5 degrees centigrade, why it is not on everybody's mind, where we are missing, particularly from the media aspect. मैं 2 मिनट लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए. मुझे आज 17.5-18 साल हो गए मीडिया में काम करते हुए. 17.5-18 साल मीडिया में काम करते हुए, और मैं आपको मीडिया का एक सिस्टम समझाने की कोशिश करता हूँ. AICT है जहाँ आज हम बैठे हैं, इसको फंड कौन करता है? इसको फंड एक सरकारी संस्था के थ्रू, एक फ़ंड के थ्रू इसका खर्चा चलता है. आप अपने घर में, अगर आप किसी काम में अपने घर पे या अपने संस्थान में किसी को काम करने के लिए रखते हैं और कल को वो आपकी बात ना करके किसी और के हितों की बात करने लगे, तो आप कितने दिन उसको रखेंगे? 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना? तो मीडिया का अगर हाल आप एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहला समझने की कोशिश है कि मीडिया को फंड कौन करता है. मीडिया को फंड करते हैं एडवर्टाइजर्स. एडवर्टाइजर्स कौन है? पब्लिक एंड प्राइवेट. पब्लिक में है आपका सरकारी संस्थान जो मीडिया को एडवर्टाइज करते हैं, प्राइवेट में है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस. जैसे इस कॉन्फ्रेंस के भी मैं देख रहा हूँ कि शेल, ONGC स्पॉन्सर कर रहे हैं. तो अगर आपका जो घर चल रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूल है ये स्पॉन्सर्स. 75 से 80% जो पैसा आता है आपका, जो अखबार हम 3 रुपये में अखबार लेते हैं, उस अखबार का पर दिन का प्रिंटिंग कॉस्ट है 60 रुपया. कितने लोग हमारे देश में एक अखबार से 50 लोग अखबार पढ़ते हैं, जैसे पान वाले की दुकान पे? तो एक जो मीडिया को पे करने की जो कॉस्ट है, अब हम बात करेंगे कि मीडिया एक पब्लिक संस्थान है, एक पब्लिक गुड की ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल है. अब हम बात करेंगे कि मीडिया का पब्लिक गुड का करने के लिए लोग पढ़ेंगे. इट्स अ 2 वे, कम्युनिकेशन इज़ अ 2 वे प्रोसेस, 2 वे स्ट्रीट. तो अगर हम जब बात करते हैं कि जब मैंने अपना करियर 2005 में स्टार्ट करा, तो तब बात करते हैं कि 3 C बहुत चलते हैं: क्रिकेट, सिनेमा एंड क्राइम. अब क्रिकेट, सिनेमा, क्राइम अगर मैं लगातार, मैंने आज तक अखबार छोड़ के काम नहीं करा, चैनल में काम नहीं करा, तो जितने लोग पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये ना 2 वे स्ट्रीट. अगर आप लोग मतलब एज अ पब्लिक, एज अ लार्ज, वो मसाला को
नकारने लगेगी, तो जब मसाला नकारा जाएगा तो मसाला परोसना भी बंद होगा. इट्स अ विशियस साइकिल दोनों तरफ से, कि अगर ज़्यादा मसाला परोसा जाएगा या कम करेंगे तो लोग भी कम देखेंगे. ये साइकिल चलती रहेगी. हाँ, पर हमें जो पिछला ये हो गया प्रॉब्लम्स, अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी कैसी है, जो हृदय जी ने, मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने बताया. अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है कि पिछले 10 सालों में इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का जो परिप्रेक्ष्य है, जो पूरा सीन है वर्ल्ड में, वो बदल गया है. अभी तक सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच चल रहा था कि बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े अखबार, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लेगेसी मीडिया था. अब हमारे पास जो अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इन्फॉर्मेशन अब डिसेंट्रलाइज हो रहा है. एक गांव में, एक कस्बे में, एक छोटी सी छोटी पहाड़ पे चोटी पे बैठा हुआ आदमी भी आज अपनी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन का फ्लो कर सकता है. तो बॉटम्स अप अप्रोच का आपके पास एक चांस है, जहां पर आप ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू और कितनी ऐसी ऐप्स हैं, यूट्यूब के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन को बाहर ला सकते हैं. तो जो लेगेसी मीडिया का जो क्लचेज हैं, जो ट्रेडिशनल मीडिया के जो कहते हैं ना कि हमारे पास उनकी बेड़ियाँ हैं, आज उनको तोड़ने का हमारे पास मौका है. आज ज़रूरी नहीं है आपके पास कि आपको बहुत ट्रेंड होके ही आप जर्नलिज्म में या इन्फॉर्मेशन को बाहर ला सकते हैं. मेरे इतने सारे दोस्त हैं, जो इतने लोग हमारे साथ काम करते हैं, जिन भी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम करा है, जो देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग कस्बों में बैठ के इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बाहर लाते हैं कि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को, जो कभी भी शायद ट्रेडिशनल मीडिया के माध्यम से बाहर नहीं आती, वो आज सारी इन्फॉर्मेशन इज़ कमिंग आउट. सो आई एम सेइंग देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर अपॉर्चुनिटीज़. Point is, when it is a two-way communication street, it has to happen from both the ends, and there is an opportunity for us to democratize and decentralize the information flow. Absolutely. So both the sides should work, and so public should also demand less of crime, less of cinema, and less of cricket. And there is a fourth C that you can add, more of climate change. So we need to add the climate angle into what we are doing. Let me bring my attention to the Bobbins. Bobbins is from India Times, and let me tell here that this particular session of media is in partnership with India Times. So, Bobbins, same question to you. I think it is very clear that media has failed to bring this most important information about the seriousness of the climate change. I mean, it is true that public, it's not demanding, but in the morning session we discussed that if we leave it to public completely, somewhere it is dharma of the media is to show for the public good information which is really for public good, and something as critical as the climate changes. What do you dare to say? On the onset, let me admit, media is not doing enough. And now, since we are good at blaming others, I'll put the blame on you. Okay, so I am going to just read out a couple of headlines. So Himachal Pradesh lost 18% ice cover in an year. 90% of the days in 2021 saw at least one extreme climate events. These were like 2 recent reports. How many of you were aware of this? How many of you have read this? Good. Any more hands? Yeah. 1%. 1, 2. 2%. Great. Well, that's your answer why media won't cover this. Because this is something that was reported, maybe it was widely reported, but nobody bothered to read it. So that's why this is something that should have been on the front page, got to maybe one column somewhere, or just to digital, because nobody is interested in reading. Do you agree that? So, okay, now that I actually put the blame on you, let me be serious. Again, coming back to media is not something that is isolated. Media is a reflection of the society. If the society wants, the media will report. Media will have to report. So even in media, like, what is the most memorable image that you can recall about climate change? I think Bobbins is taking class here. Yeah. That polar bear standing on that melting ice block, right? Yeah.
You can all relate that to climate change, but then what happened in Uttarakhand, what happened last year earlier this year in Chamoli, why are we not relating that to climate change? That is climate change. We are still, unfortunately, even in media, we are still saying that climate change is going to happen, but that's not. We have to change the narrative, say these things have happened, and that is what climate change is going to bring to you. So the climate change narrative has to be changed, and it is very clear that climate is not changing anymore. It has already changed. So sometime I believe, and as a professor, whether there is enough understanding, whether media really understand what is happening. I mean, let me give some figures here, and the figures are so threatening. And how can media not report it? For example, per capita carbon emission per month is 200 kilograms in India. Now, the second fact about the carbon emission is once carbon dioxide is emitted, it remains in the atmosphere for average of 300 years. 300 years. So every action that we are taking today is going to have impact till next 300 years. Yeah. Isn't it such a big information? 1.5 degrees centigrade is only 6 years to go, and we are not worried about it. So does really media understand the criticality of climate change, or is something else? I mean, that's what I would like to. नहीं, मुझे लगता है कि media understands it very well. They understand it better than many others. People sitting on top. I mean, we often joke, as a reporter, we would joke in newsrooms that this medium doesn't suffer bad reporters, it suffers bad editors. That is, again, according to you, is putting blame on others. But the thing is this, the simple thing, मैं बहुत क्योंकि यहाँ पर कई यंग स्टूडेंट्स हैं और मुझे लगता है कि मुझे उनको एड्रेस करना ज़रूरी है. जो टेक्निकलिटी है वो समझिए. टेलीविजन इज़ ए कॉक फाइट डे एंड नाइट. And it has reached to a venomous level, but why it is so? शुरुआत में इतना जहरीला नहीं था, लेकिन अच्छा खासा एग्रेशन होता था टीवी में. क्यों होता है? टीवी कब देखा जाता है? आदमी दफ्तर से, स्कूल से, काम से लौट के आता है और रात को डिनर करते वक्त टीवी देखता है. दिमाग चलाने का, और ये बिल्कुल साइंटिफिक है, रिसर्च पे है, ये कोई इट्स नॉट एनेक्डोटल. तो ये कम्युनिकेशन में सिखाया जाता है कि उसका दिमाग बहुत थका हुआ है, उसको ऐसी खबर दिखाओ या इस तरह से खबर दिखाओ कि उसको ज़्यादा दिमाग न चलाना पड़े. तो दिस कॉक फाइट वर्क्स वेरी वेल. नंबर वन, इट इज़ ए कॉक फाइट. People would like to see this punching. We are all, even if we can't cut a chicken for curry, but we talk about, all kind of revolutions and doing everything. So this is something here and here. So that works. Second, it is, as Mayank said, it's very cost effective model. अगर एक रिपोर्टर जैसे मैंने कई साल तक बस्तर में रिपोर्टिंग की है, माओइस्ट इंसर्जेंसी कवर की है. मैं और एक कैमरामैन अगर बस्तर जाते हैं रिपोर्ट करने, तो फ्लाइट के 4 टिकट होते हैं, रिटर्न टिकट. एक टिकट 10,000 का, 40,000 रुपए. 4 दिन होटल में रहना, 2,000 रुपए का भी होटल है, बहुत सस्ते सस्ता. 8,000 रुपए इसमें जोड़िए, 28,000, 28,000. उसके अलावा 50,000 का और खर्चा जो गाड़ी हायर करना. तो 1 लाख रुपए में एक 5 मिनट की स्टोरी मिलती है, और 2 लोगों को फोन करना है जिनको कोई काम नहीं है, एंड दे आर रेडी टू हर्ल ऑल काइंड ऑफ अब्यूज ऑन टेलीविजन, एंड यू हैव ए एंकर विच इज इन एनी केस गेटिंग पेड बाय द चैनल. सो इट इज गुड मॉडल, इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल. सो इट वर्क्स. टेलीविजन में, अखबारों में थोड़ी सैनिटी बची हुई है. क्यों? क्योंकि इट इज रेड इन द मॉर्निंग व्हेन योर माइंड इज फ्रेश. You can think, you can read and reread. This is simple science of difference between this genre, but it was not structured that way कि आप शाम को जहर परोसो और दिन में थोड़ी सैनिटी रहे सुबह को. ये स्ट्रक्चर्ड इस तरह था कि आप अपनी स्किल्स को डेवलप करो और खबर को इस तरह से बनाओ कि आदमी को देखने की एफर्ट कम करना पड़े. सो दिस वाज व्हाट. तो आपने जो सवाल पूछा, लोग समझते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझते हैं. रेवेन्यू मॉडल जिसकी और मयंक ने इशारा किया, दैट इज द बेस. वी आर सिटिंग इन दिस conference and talking about clean energy, but the funders are, who are culpable of, carbon emission, and they are earning crores of crores from this thing, which is a reality, not in this everywhere. So we should talk about this also. And one thing which I should say is this, that why would people work and why would people make effort when they are getting,
if you say the salary brackets, the funding structure, the kind of the top brass, अगर शुरू के 10 लोगों का, जो हम असमानता की बात करते हैं ना, अक्सर हम सोशलिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं, तो राम मनोहर लोहिया जैसे सोशलिस्ट लीडर ने कहा था कि कितनी भी असमानता हो, जैसे कहते हैं कि परफेक्ट इक्वालिटी इज वेरी बैड बिकॉज फिर सब लोग निकम्मे हो जाएंगे, इट इज ऑल्सो बैड फॉर इकोनॉमी एंड सोसाइटी, बट इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि एक आदमी को जो 1 रुपया मिल रहा है तो उसके टॉप ऑर्गेनाइजेशन में 10 रुपए से ज्यादा मिले. बट I would again think these young researchers here will find out, और ये बहुत आसानी से उपलब्ध है कि कितनी डिस्पैरिटी न्यूज रूम्स में है, और वो बनाए रखने में उनको बहुत आसान है. अगर वो उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे तो अच्छे रिपोर्टर्स हायर करने पड़ेंगे, वो पैसा मांगेंगे. तो हो क्या रहा है धीरे धीरे, दीज पीपल आर गोइंग आउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड दैट्स वेयर द अपॉर्चुनिटी कम्स. अब बाहर लोग इतने ज्यादा हो गए हैं जिनके पास कैपेबिलिटी और काम कर सकते हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा पैसा मिल रहा है, बट दे आर वेरी मोटिवेटेड. सो आफ्टर दिस सेशन यहाँ पर कहना तो एक वो हो जाएगा, तो हम लोगों को ये बताएंगे कि आप कौन सी वेबसाइट्स पढ़ें, आप कौन से न्यूज़पेपर्स को देखें, आप ऑडियो बुक्स सुने, तो आप लोगों के लिए बहुत रास्ता खुला हुआ है. और जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो 1.5 का है, ही इज़ प्रोफेसर, ही दिस इज हिज वर्क टू एक्सप्लेन, लेकिन 25-30 साल काम करते 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 हमें भी थोड़ा पता चल गया. तो जो 1.5 है ना, दिस 1.5 एंड 2 डिग्री एंड 2.5 डिग्री इज नॉट ए प्रोपोर्शनेट वार्मिंग, इट इज एक्सपोनेंशियल वार्मिंग. तो जो आपको 1.1 और 1.5 के बीच में आपदाएं, क्लाइमेट क्राइसिस दिखेगा, वो आपको 1.5 और 2 के बीच में नहीं दिखेगा. इसीलिए जो गार्डियन अखबार है यूके का, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी को बदला. उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग अब वो नहीं लिखते, दे राइट ग्लोबल हीटिंग बिकॉज इट इम्पैक्ट्स ऑन योर माइंड एंड आईज. ग्लोबल हीटिंग कहने में आदमी समझेगा कि खतरा अब बिल्कुल दरवाजे पे आ गया, हमारे सर पे आ गया है. They don't write climate change, they write climate crisis. So wonderful. So this kind of things is what media probably, media understands people in their mind better than anybody else, because that is what you are kind of serving to. So creative ideas like not global warming, global heating can play a big difference. So Mayank ji, coming back to you, what I understand from him that media understands it, but it is the kind of demand, it is kind of revenue model. And what time you are kind of serving the news. So apparently the newspaper is still not so bad as the TV right now. Do you think there is something more can be done to bring this awareness to people, and can there be a headline news that 1.5 degrees centigrade is really super critical for the entire humanity? How can we bring that as a headline? आपने एक सवाल में मुझसे 4 सवाल पूछे हैं, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ. पहले ये समझने की ज़रूरत है कि मीडिया को जो हम फेलियर की बात करते हैं, 2 पार्ट हैं. एक कैपेसिटी बिल्डिंग. जब मैं अखबार में काम करता था तो मैं एक दिन में 11 मिनिस्ट्रीज़ कवर करता था. ठीक है, अब मैं 11 मिनिस्ट्रीज़ कवर कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से लेके रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री तक लेके. अब एक दिन में मैं कितने भी अखबार में, बड़े से छोटे अखबार में काम करूँगा, 11 मिनिस्ट्रीज़ कवर करते हुए 11 खबर लिखने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं होगी और ना मेरी मेंटल कैपेसिटी होगी. तो एक तो होता है कैपेसिटी बिल्डिंग, एक जगह. आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम इन दिस मीडिया एज वेयर अगेन आई एम कमिंग बैक टू द डेमोक्रेटाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि इतना इन्फॉर्मेशन का लैंडस्केप चेंज हो गया है कि अब हमारे पास जगह है, अब हमारे पास काम है. और एक चीज़ का क्रेडिट मैं मानता हूँ कि जो मतलब लेगेसी मीडिया की जो मैंने बात बोली, पर एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू गिव क्रेडिट टू दोज मीडिया रिपोर्टर्स. और क्यों, वो भी बताता हूँ कि उन मीडिया रिपोर्टर्स को जो लोग आज भी उन लेगेसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में बैठ के क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं. अब क्या होता है, जब आप क्लाइमेट चेंज के बारे में आपने ऑनलाइन खबर चलाई अखबार में या टीवी पे, उसके व्यूज़ नहीं आए तो आपके एडिटर बोलता है कि ये खबर चली नहीं, तो आप कुछ और लिखिए. तो अब बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे मेरे कोलीग्स हैं अभी भी जो अखबार में या चैनलों में काम कर रहे हैं, और मेरे जैसे इंडिपेंडेंट बहुत सारे, तो अब वो क्या करते हैं, ब्लेंड करने लगे हैं खबर को. कई बार आप एनवायरनमेंट रिलेटेड खबर पढ़ रहे हैं पर आपको वो समझ नहीं आएगा कि हमने आपको एनवायरनमेंट के बारे में बता दिया. तो वो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर लुकिंग एट इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ एनवायरनमेंट विद पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट विद बिजनेस, एनवायरनमेंट विद से टेक्नोलॉजी. जैसे टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट रिलेटेड स्टार्टअप्स के बारे में आपने बात करी. अब यूएस में अभी जब अभी जो मिड टर्म इलेक्शंस हुए, उसमें द सेकेंड टॉप इशू ऑफ कॉन्वर्सेशन वॉज क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी.
तो धीरे धीरे जब आपको रिपोर्टर्स अपना काम दूसरी तरीके से कर रहे हैं, मतलब आप कान को ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ लीजिए, तो ये तो हो गई दूसरी तरीके की बात कि रिपोर्टर्स के फेलियर्स के ऊपर बात। अब हम एज अ सोसाइटी की जो हम बात कर रहे हैं, तो मैं अगेन आई एम कमिंग कि एक अपॉर्चुनिटी क्या है। जैसे आप मान लीजिए आप कंज्यूम करते हैं, आपके घर में जब आपका जो बच्चा होगा या आप हम में से बहुत सारे लोग जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो हमें क्या बोलते हैं कि हेल्दी खाना खा लीजिए, कि अगर पिज्ज़ा खाना है, पिज्ज़ा ही खाना है तो व्हीट ब्रेड वाला पिज्ज़ा खा लीजिए, या पिज्ज़ा नहीं कभी आज थोड़ा सा हेल्दी खा लो, आज कुछ और खा लो। तो हम जब हम मीडिया कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं तो मीडिया को भी हम कंजम्पशन अपने आप पे थोड़ा सा, मतलब बिकॉज हम अभी फॉर्मेटिव एज में हैं, वी आर अ लॉट ऑफ रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स, तो हम अपना कंजम्पशन, मीडिया कंजम्पशन को भी चेंज कर सकते हैं कि अगर हम, एंड वाई आई एम सेइंग दिस, मेरे एक फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, ही इज़ 35-36 राइट नाउ, वो किसी भी मीडिया चैनल, अखबार, न्यूज़ वेबसाइट को खबर के लिए नहीं देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी न्यूज़ को कंज्यूम करते हैं। तो जब हम इतने प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो हमें अपना मीडिया कंजम्पशन को, हम कहाँ से मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं, हम कहाँ से उन खबरों को कंज्यूम कर रहे हैं। इतने सारे नए इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जो अभी कॉप में गए या जो अलग अलग जगह पे जाकर वीडियोज़ के माध्यम से, फ्लो चार्ट्स के माध्यम से, ट्वीट्स के माध्यम से इतने अलग नए नए इन्फॉर्मेशन के सेक्शंस को लेके दे आर पुटिंग आउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट चेंज। सो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हम और बहुत सारे इंडिपेंडेंट और इवन लेगेसी मीडिया में जो लोग हैं वो उसको जर्नलिज्म को कर रहे हैं। जैसे एक क्विंट में रिसेंटली देयर इज़ अ लेडी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक पूरा A to Z ऑफ क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने क्लाइमेट डिक्शनरी, क्लाइमेट डिक्शनरी बनाई। तो मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम जर्नलिस्ट और पब्लिक दोनों के थ्रू उसको कंज्यूम करके उस चीज़ को बढ़ावा दें। अगर हम करेंगे तो वो जो टू वे स्ट्रीट है वो काम करेगी। So good to know that in a way there is a kind of a creativity and you are trying to meet both the ends, so that not only that you can satisfy your revenue generation model, but the creative journalist will also bring the information which is good for the public. And I also kind of realize from both of you and Rideshji that there is a great opportunity for anybody to actually report, and I don't know how many of in this audience would like to become a journalist. How many of you would like to come and report about the climate change? Anybody? I mean, you don't need to be a profession in journalism. I think wherever you are, you can start talking about it. Let me see the raised hand. Wow, wonderful. I think that is the opportunity that this new generation media, the channels are creating, that we need not to really wait for the standard media to do that. So when there is so much opportunity, Bobbins, what do you suggest and how people here, particularly young people, can bring information and spread it, particularly in the space of climate change? Again, like if we look at the, we call it social media age, right? Because anything that, like at least the students, most students here, the information that most of you consume is from, I'm sure you might have already moved away from Facebook. You should be the Instagram generation. Or has Instagram also become old now? Either way, but any social media platform, whichever social media platform you get the news or information from, you can also use that to echo your voice. You don't have to be a reporter. You don't have to write. You don't have to put properly edited video package. You can just say whatever you want. And then you can, if it's about climate change, or if it's something that you as an individual taking an action on your own, say it loud, and there will be an audience that is ready to listen, and because that may resonate with them. So this digital news media outlets and all the social media platforms is I would say it's a blessing, because it takes away the power of the legacy media which it had. If there was always said, if 2-3 legacy media came together and they decided to suppress a news, it didn't come out. That's not the case today, because anyone with a smartphone can be a reporter, can be the source of the news. Just to add one thing,
जब बहुत एक क्लीशेड लाइन है, कहते हैं ना कि एवरी पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने मार्वल की बहुत सारी मूवीज़ में देखा भी, सुना भी होगा. आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, जब हमारे पास डेमोक्रेटाइज वे है इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करने का और उसको बाहर भेजने का भी, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया की पावर के साथ हमारा पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जर्नलिज्म से कुछ ले ना ले, ये चीज़ ज़रूर हमें लेनी ज़रूरत है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम पुट आउट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, चाहे हम व्हाट्सएप पे वीडियोज़ बना के शेयर करें, जर्नलिज्म से बस एक चीज़ ले लीजिए कि उसको चेक करना कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, आप किस इन्फॉर्मेशन को कैसे परोस रहे हैं, वो कहाँ से सोर्स हो रही है, बस ये एक बेसिक पैरामीटर आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का, वो बहुत ज़रूरी है. So I think it is clear that maybe the standard media is probably not that effective, but there are opportunities that are coming up, and in the context, in the situation of crisis, there are avenues, and everybody and anybody who is concerned about climate change actually can come up and start spreading information. But be careful, because it's an opportunity, but it has to be with a responsibility, because if instead of 1.5 degrees centigrade, if I start talking something else, many people will start believing, being a professor, that he might be right. So everybody here can take that. I'll just add one more thing. That's something that I have been practicing. So if there's a topic which is like beyond my grasp, or like I feel that if there's an expert or an individual out there who can convey it better, I'll always ask that person. I'll just tell him that I can give you a platform. I can give you ideas, a platform. Just write it. So that's just right. I mean, and yeah. I discussed with the editor. We are going to create a microsite on India Times with Energy Swaraj. And anybody who wish to write, I think that's a wonderful opportunity. You're always welcome. It's a wonderful always opportunity. Welcome to write. Anybody who wish to write concern or solution or anything, I think there's an opportunity available. Great. So now let me open the floor to the audiences. Anybody who has any question, if you can come forward, there's a mic which is going there. There's a question on the right hand side here. Sir, anybody else, if you can have a quick question, and then Sir, we'll I answer. had one this question, sir. Yeah. Sir, I had one question. Okay, here, Okay, sir. Ajay, it's healthy the question. Please go ahead. So, it was a great discussion. My question is to Mr. Mayank. This thing. So, you talked about democratization of media, and definitely we have seen that power. But my question is, I write a lot about on my personal platform about climate change thing. But I've seen the amount of response I get on something which I like, which is very critical, and this thing. How do we ensure that these algorithms are not ensuring it is actually democratic in nature and it's free still? Are the social media algorithm are really democratic in nature? आई रियली विश आई हैड एन आंसर, कंप्लीट आंसर फॉर दैट. बट हाँ, मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़रूर उसमें बता सकता हूँ. मैंने लेगेसी मीडिया और इंडिपेंडेंट मीडिया और अब एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन तीनों में काम करा है. छोटे से सॉल्यूशंस हैं जो मुझे आते हैं, हृदय जी उसमें ऐड कर सकते हैं. ही हैज़ बीन वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन फॉर लॉन्ग नाउ. जैसे मान लीजिए आपने लिखा, ठीक है, आपने जिन लोगों को लिखते समय यूज़ करा, कोट करा, उन लोगों को टैग करना. जिन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से आप बात कर रहे हैं उन लोगों को करना. देखिए, एल्गोरिथम जो बिग टेक का एल्गोरिथम है, उस पर तो अभी सरकार है और पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है कि बिग टेक को कंट्रोल कैसे करा जाए, बिग टेक के एल्गोरिथम को कंट्रोल में कैसे लाया जाए. दैट इज समथिंग एल्स विच इज़ बियॉन्ड, लाइक आई एम अ वेरी स्मॉल कॉग इन दैट व्हील. बट ओवरऑल आई कैन जस्ट से दैट छोटी छोटी चीज़ें हैं. जैसे आप थंबनेल के बारे में भी हृदय जी आपको बता देंगे, बट टैग करना, लोगों को सही प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रीच आउट करना, सही लोगों के साथ कोलैबोरेट करना. फॉर एग्जांपल, अभी जैसे आपने बोला कि आप लिख रहे हैं, पर आप बिकॉज आपका उसमें एक्सपीरियंस नहीं है लिखने का, या आपने इसे क्रिटिकल है तो रिस्पॉन्स नहीं आता. मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने कई बार ऐसी स्टोरीज लिखी, मुझे लगता है कि वो स्टोरीज, अगर मेरे मन में था कि अरे कल तो आग लग जाएगी, इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, क्लाइमेट की स्टोरीज की बात कर रहा हूँ, उस पर मुझे आए मुश्किल से 300-400 व्यूज़. ठीक, एक स्टोरी लिखी हमने ड्यूगोंग पे, वाइल्ड लाइफ के बारे में, उसके और आई डोंट नो हाउ उस पर 2 लाख व्यूज़ मुझे मिले, मतलब हमारी वेबसाइट पे जो काम कर रहे थे. तो समटाइम्स हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू न्यूज़, इट्स कम्प्लीटली बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग. मैंने हिमालयन उस पर लिखा कि हिमालय में इतने ग्लेशियर्स इतने टाइम पे इस तरीके से जा रहे हैं, पूरा प्रॉपरली रिसर्च बाय साइंटिस्ट, और मुश्किल से 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने भी हमको फॉलो करके उस पर उसको रिपब्लिश नहीं करा. एक वही स्टोरी मैंने दूसरे एंगल से किसी और चीज़ के ऊपर लिखा, अगर वहाँ से किसी सक्सेस स्टोरी, दैट वेंट वेल लाइक वाइल्ड फायर. सो
इसका कोई आपको So basically, you learn formula नहीं to मिलेगा. learn to put some masala or some twisting no, into no, it. no. I'll Not just really? add one more thing. That is, it's a general rule that one news item which work on Facebook is not guaranteed to work on Twitter or Instagram or LinkedIn. So it's important that you know that where to amplify which voice, which story. So not necessarily, but content can be correct. But sometimes we do not know how does it work. इंटरनेट पे अच्छा काम करने का मतलब है, अच्छा काम करने का मतलब है कि आप ये उम्मीद न करें कि उसका रिस्पॉन्स, तीसरी कसम जब बनाई ठीक है, वो फिल्म है ना, बच्चों ने अभी इन्होंने नहीं देखी हुई, हमारी उम्र के लोगों ने तीसरी कसम ज़रूर देखी है, मेरा नाम जोकर, राइट, they get response very late sometime. And I don't know whether I may be wrong. The producer or director of Teesri Kasam was alive to see the success of the film. So I'm just making it discussion बहुत भारी ना हो जाए. लेकिन समस्या ये है कि अब गूगल भी बताता है आपको, और गूगल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे देखी जाए. मैं इनको यही बता रहा था कि आप में से सारे लोगों को मैं इस बात की एडवाइस करूंगा बिना मांगे हुए कि there is a fascinating book which has come in 2-4 साल पहले. Its name is The Age of Surveillance Capitalism. It is written by a Harvard professor. It's a wonderful book. I couldn't read that thick book, but fortunately there is an audio book also, so I could, while traveling, listen to it. So these things are also managed by technology, and there is a war also कि क्या चीज़ देखी जाएगी और क्या चीज़ नहीं देखी जाएगी. So कई मौक़ों पे, लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं ना, यूट्यूब चैनल्स या वीडियोज़ हैं, इनमें कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज़ है. आप क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत का काम है बनाना, और जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है उसके लिए तो पूरा दिन अगर वो लगाए, जैसे मैं आई एम ए फेयर्ड यूट्यूबर, बिकॉज इफ आई कीप वर्किंग ऑन यूट्यूब देन हाउ माई फैमिली विल सस्टेन. सो आई हैव टू राइट एंड डू समथिंग एल्स टू सस्टेन माई फैमिली, सो यूट्यूब विल बी टेकन केयर ऑफ लेटर. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो ये चीज़ें इस बात की गंभीरता को कम नहीं करती कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियल थ्रेट. क्योंकि जब न्यूज़ रूम में मैं शुरू में इन्वायरमेंट की स्टोरी लेके जाते थे, कहते यार फिर विकास का दुश्मन आ गया, जरूर कोई प्रोजेक्ट को रोकने के लिए स्टोरी लेके आया होगा. Is that the reason you stopped watching TV? No, I did not stop watching. I stopped watching news TV. I watch sports. I watch the football World Cup which is going on. I watch good stuff on Netflix and everywhere. But this news TV, and not because of these things which I was just telling a moment ago, because they are making you so aggressive here and high on. शब्दों में हम बहुत अच्छे हैं, काम करने के लिए कुछ नहीं है. वैसे वो भारत को सब कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने घर के आगे का कूड़ा साफ नहीं करना चाहते. That is the problem. They do not segregate the waste in their house, but they say that we were telling the world what we are. ना, तो ये बात है. तो मैं एक छोटी सी बात कहीं ख़त्म कर रहा था कि वो कहते थे कि विकास का दुश्मन आ गया और ये स्टोरी जो है बिजनेस के इंटरेस्ट में नहीं है, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं. तो मैं उन्हें समझाता था भैया इस स्टोरी को पढ़ लो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डेवलपमेंट रुकना चाहिए. ये ऑल्टरनेटिव बात बता रही है कि इस प्रोजेक्ट से कुछ होना जाना नहीं है. फिर वो कहते थे कि ये जो क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट्स हैं ये सब NGO ड्रिवन होती हैं, और इसको जो लिख रहे हैं उनका अपना एक बाज़ार है, झोला वाला है, दुकान चला रहे हैं. तो मैं कहता था नहीं, IPCC के साइंटिस्ट ने लिखी है, दे आर साइंटिस्ट, दे आर नॉट NGO एक्टिविस्ट, दिस एंड दैट. सो जिसको नहीं देखना है, देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड कन्फर्मेशन बायस. उसका कन्फर्मेशन बायस है, कॉग्निटिव डिसोनेंस है, वो नहीं देखेगा. लेकिन दैट्स वेयर द कम्युनिकेशन स्किल कम्स. जब मैं उस साइड बैठे हुए आदमी को अपनी पास बुला के बिठा लूँ, दैट्स द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन. अदरवाइज तो प्रीचिंग टू कॉयर है कि जिसको क्लाइमेट चेंज के बारे में पता है उसको बताते रहो. इस रूम में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन बातों से सहमत होंगे जो मैं कह रहा हूँ, बट अगर मुझे ऐसी भीड़ के सामने करे जो बिल्कुल एग्रेसिव है, तो उसको समझाना थोड़ा कठिन होता है. That is really a skillful job and It is important. I don't know आप लोगों को पता है कि नहीं, मैं 11 साल तक मैं बस में रहूँगा और ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कभी-कभी that becomes a challenge to myself and how to. वो एक लड़का था जो अलास्का गया था, मैं बात इसको बता रहा था, उसका नाम क्या मैकेंडलेस था, जिसकी बुक है पूरी. You are inspired from that story? Have you ever heard? No, I mean, and we'll discuss. But there are, I think, couple of hands there. Yes, Let me go to the young student first, and then maybe one more. Can I and then have be one another question? 5-7 Because I'm minutes. standing since long. Okay. I just wanted to ask you, sir. I could able to hear, and thank you, Professor Solanki, you have given such a nice panel for a discussion. I just wanted to know that how academic institutions should approach media to aware for the climate changes. Because जब हम किसी मूवी की बात करते हैं तो
जब राजपाल यादव बोलता है कि ये इंडिया नहीं है, इसको इंडिया मत बनाओ, आप बाहर मूवी करते हैं तो, या फिर सुबह से मैं जो भी सेशंस अटेंड कर रहा हूँ या कल से जो सेशंस अटेंड कर रहा हूँ, सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि हाउ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस शुड act or perform, or even media could approach to them to have a quick and quality approach to climate change. Thank you. Or maybe one, let us take questions and then we get, or some more questions we can take, yeah. हेलो 2 हफ्ते पहले एक न्यूज़ था कि all TV channels will have to broadcast 30-minute slot for something of a national interest. If somebody does similar announcement for say something for a climate crisis or environment, do you think it will work? Because people find a ways to bypass those or may not put in a prime time slots. And one small experience like 2004, 2006, that period, PCRA was doing one program, खेल खेल में बदलो दुनिया नाम से. That was done by a PCRA, that's a government organization that time. And they used to do this, like what is happening in environmental domain and primarily fuel saving, energy saving, what people are doing, some stories they used to capture and put it. And that was reasonably popular program. But then the whole, after the whole trend changed, the TV wanted more masala, not that many channels. So even people used to watch national TV that time, Doordarshan. बाद में शायद आजकल कोई देखता नहीं है. But these two things, like making it mandatory for a particular time to show something about environment and having a dedicated program, will it work now? What is your frank opinion? All right, one, thank you. Thank you very much. One more question. Only one of you student can. Yeah. Hi, No, sir. here. Good morning, sir. I have a question that why media is not independent in our country? Why? Very nice, wonderful. I know the young and clean mind always asks the best question. One person behind, I think there is a, yeah, that the blue, yeah, the girl, yeah. Good morning, sir. I had a question. As you said earlier that anyone can become a reporter through social media like Instagram. What if you're not able to reach an audience? What if like quite less people are responding to the news that we're posting? What can we do in such a situation? All right. One more question. Hi, sir. So the question was that I was asking regarding, do you agree on this thing or not? Ki very much there is responsibility of editor or the proofreader also to where to focus over the news niche. Since because what happened, because I'm a entertainment journalist, so what happened back and there was an event happening in Bombay where the beach cleaning program was going on, where the beach cleaning was not moreover focused in the article or in the video news, but moreover that was being focused that Akshay Kumar has came on the beach to clean that. All right, so thank you very much, everyone. I think these are wonderful questions, and I'm sure one more we can take. Okay. Sir. Within 5 to 7 minutes, we have to wind up. There are 2 more programs before the lunch. Yeah. Just last question. So, sir, I've noticed that media is usually very biased towards some, you can say, political party or some development of some particular area. So how should we trust the particular TV channel? My God, so the media, I mean, look at the question from the child, why you are not independent, why you are biased. I think... एक gossip book है, sorry, एक gossip book है वो out of print है अभी, और उसका नाम है All the Prime Minister's Men. It's a wonderful book, All the Prime Minister's Men. It is नाम जो है एक तरह से parody है उसका All the President's Men जो Watergate scandal पे लिखी गई थी.
तो वो जनार्दन ठाकुर साहब ने लिखी है, जिनके बेटे संकर्षण ठाकुर जो टेलीग्राफ में काम करते हैं, जनार्दन ठाकुर साहब ने लिखी है। तो आप जो सवाल पूछ रही हैं, आपको मैं ये थोड़ा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह का माहौल है कि सब कुछ गलत जो है, अभी हम वी आर सराउंडेड बाय एवरीथिंग रॉन्ग. मीडिया हैज़ ऑलवेज बीन वेरी बायस्ड, एंड दैट टाइम बंसीलाल, ए कांग्रेस लीडर हु वाज लीडर फ्रॉम हरियाणा, वुड से दैट क्योंकि अखबार लिख रहे थे उस वक्त की सरकार के खिलाफ, ये अखबार इतने जहरीले होते हैं, ये उसने अपनी भाषण में कहा, सर ये अखबार इतने जहरीले होते हैं कि इस पर रख के अपने बच्चों को पकौड़ा मत खिलाया करो. क्यों? क्योंकि इससे वो पकौड़े जहरीले हो जाएंगे. जैसे एक बार किसी नेता ने कहा था ना कि अगर पानी से बिजली निकाल लेंगे तो फिर पानी में बचेगा क्या, तो हमें डैम नहीं बनने देंगे, राइट. सो तो दिस लैंग्वेज हैज़ बीन अराउंड. व्हाट वी हैव टू फाइंड ए ओपनिंग फॉर लाइट, कि व्हाट वी कैन डू. नाउ द टेक्नोलॉजी, अब भी टेक्नोलॉजी का बूम है. अब जैसे इंस्टाग्राम कह रहे हैं, इतनी मेरे फ़ोन पे ऐप भर जाते हैं कि मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा है पर वो डीएक्टिवेटेड है, मैं उसको यूज़ नहीं करता, क्योंकि सोशल मीडिया इज सच ए बिग डिस्ट्रैक्शन. सो बिफोर यू कम, सॉरी आई टुक द माइक, सो एक एक लाइन में बताऊं कि जो सवाल पूछे गए थे उसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑलवेज राइट टू अस, and we journalists are very selfish and mean. We approach them when we need sources and references, but we don't work hard to make their stuff easy. तो one or two thing is that 2-3 लाइनें जो क्लिक बेट होते हैं ना आजकल के, कि वो थंबनेल देख के लगता है इसमें क्या है, देख लेना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है. तो start sending emails to journalists which is like a clickbait, not in a that sense, but सो दैट. और वो मेहनत, जर्नलिस्ट बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन न्यूज़ रूम में जो लोग न्यूज़ रूम को ड्राइव करते हैं, दे आर वेरी लेजी, दे डोंट वांट टू लिव. वो कहते हैं 30 सेकंड में अपनी स्टोरी बताओ, 1 लाइन में अपनी स्टोरी बताओ. अरे मैंने 10 दिन काम किया, उसमें मुझे 1 मिनट तो दो, नहीं 30 सेकंड में. सो यू हैव टू बी, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ किस कहते हैं, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. तो वो एक चीज़ है. अगर वैसे आप जर्नलिस्ट को भेजेंगे, उसमें कुछ प्रोपोगेंडा, उस कुछ करप्शन की अगर आप चाबी भरेंगे, बताएंगे कि इसमें है करप्शन और उसको, तो वो खबर न्यूज़ रूम में चलती है. आप पब्लिक हेल्थ की कोई स्टोरी लेके न्यूज़ रूम में जाओगे, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता. जब आप कहोगे कि जब कोरोना हो रहा था और आपको कौन सी दवा, हृदय जी वही तो इशू है. नहीं, वो कौन सी दवा थी जो खिला रहे थे कोरोना में सबको, नहीं आइवरमेक्टिन तो बहुत शुरू में खिला रहे थे, उसके बाद एक दवा खिलाई मैंने, उसका फेवी फ्लू, जिसने 7,000-8,000 करोड़ का बिजनेस किया, उस दवा में कुछ नहीं था जो अब निकल के आ रहा है. तो आप इस तरह की खबर बताएंगे कि जिसमें कि आपको भ्रष्टाचार का पता चलेगा, तो आपकी खबर सुनेंगे. और तब आपकी रिसर्च में कोई स्टूडेंट, देन होप दैट सम सिंसियर स्टूडेंट लाइक 2 of my people who are sitting around me, तो ये लोग होंगे. तो I can say only this. Thank you. I'll just add one more thing, that is, so I'll just take the example of IPCC report. How many pages did it have? 3,068. Like nobody is going to read that. I'll just read the summary of that. And I'll put out a report. So you can do all the best research in the world, but as long as you take ages to convey that, it will fail with me. And then when I take it forward to the audience, I'll fail there also. So that's a disconnect that research institutes have, researchers have when it comes to communication. मैं जितने क्वेश्चंस हैं बहुत क्विकली जवाब दूंगा एक एक करके. बट बिफोर दैट आई जस्ट से कि इट्स अ वेरी क्लीशेड थिंग, बट मीडिया इज़ अ वेरी फेवरेट पंचिंग बैग. सबका बहुत आसान है करना, पर जैसे हमें बोलते हैं ना कि एक बार अंदर झांकने की थोड़ी सी ज़रूरत है हमें. स्टार्ट करता हूँ अकेडमिक इंस्टीट्यूशन वाले से. जैसे उन्होंने बताया कि 3,500 पेजेस की एक रिपोर्ट थी. मान लीजिए आपके अकेडमिक इंस्टीट्यूशन में किसी ने 40 पेज का या 15 पेज का एक पेपर लिखा. मैंने बताया कि मेरे जैसे हज़ारों लाखों जर्नलिस्ट जो काम कर रहे हैं, एक दिन में 11-11, 12-12 मिनिस्ट्री या सब्जेक्ट्स. अब अगर कोई एजुकेशन कवर करता है, अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस कवर करता है, इस देश में कई 100 अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है. तो अगर आप मुझे जो ईमेल भेज रहे हैं, आप मुझे जो मैसेज भेज रहे हैं, अगर वो कंसाइज 2 लाइन में आप मुझे बता सकें, तो अगर आपने वो हुक है ना, आप जब हेडलाइन पढ़ते हो कि एक हुक है, तो अगर वो हुक मुझे मिल रहा है आपकी बात में, तो मेरे पास वो अटेंशन मेरा लगेगा, पहली बात. दूसरा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई कैन स्वेयर ऑन एनीथिंग, मैं जितने साल से काम कर रहा हूँ, मैं जितनी बार लोगों को अकेडमिक इंस्टीट्यूशन में रीच आउट करता हूँ, मेरी खबर जानी है आज शाम को या कल या मैक्सिमम परसों तक. मुझे साइंटिस्ट और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप आइए, मुझे अगले हफ्ते 10 दिन बाद मैं आपको भेजूंगा या बात करूंगा. तो जो अकेडमिक इंस्टीट्यूशन जर्नलिज्म का जो एक ब्लेंड होने की ज़रूरत है, वो ये है कि दोनों जगह इन्फॉर्मेशन फ्लो हो. अगर आप सिर्फ बोलो कि मीडिया नहीं छापता हमें,
तो मीडिया को एक छापने का जो साइकिल अगर आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मीडिया आपके पास वापस नहीं आएगा, अगर क्लाइमेट चेंज का निकल गया तो वो आपको भी, मतलब आपसे आई मीन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी, वो थोड़ा सा ओपन होने की ज़रूरत है मीडिया से बात करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन सर आपका था नेशनल इंपॉर्टेंस का, यहाँ पर एक सर थे। सर मेरा तो ये मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जब भी आप किसी चीज़ पे इम्पोज करते हैं तो ह्यूमन साइकी ऐसी है कि आप जितना किसी चीज़ को इम्पोज करेंगे किसी के ऊपर, वो दूसरा आदमी उतना भागेगा। अगर आपको रोज़ पता चल गया कि 9 से 9:30 के बीच में क्लाइमेट चेंज के ऊपर खबर आएगी, तो गिन के उसके बाद सिर्फ 15 से 10% लोग बचेंगे आज से 1 साल बाद। 1 साल बाद तो खूब देखेंगे, उसके बाद अगर आज से अभी 100 लोग देखते हैं 9 से 9:30 के बीच में, तो सिर्फ 10% लोग बचेंगे वो जो 9 से 9:30 के देखेंगे। पॉइंट जो हमें बात करनी है कि किसी भी चीज़ को एक्सक्लूसिविटी पे बात नहीं करके उसका कंपोनेंट, उसका इंटरसेक्शनैलिटी, हर खबर, हर एकेडमिक, हर, चाहे आप एजुकेशन पे लिख रहे हैं, आप बिजनेस में लिख रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे लिख रहे हैं, किसी भी चीज़ पे लिख रहे हैं, अगर हमारा हर खबर में एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज का कंपोनेंट बिल्ट है तो वो दिक्कत नहीं आएगी। सॉरी मैं अभी फटाफट से जवाब दे रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन था कि मीडिया इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, एनडीटी। आई थिंक वो मैंने अपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में थोड़ा सा जितना मैं जवाब दे सकता था यहाँ पर मंच पे बैठे हुए, वो मैंने समझाया कि मीडिया का इंडिपेंडेंस का इशू क्या है। जो बहुत सारा अभी मीडिया जो पिछले 5 से 6 सालों में इंडिपेंडेंट हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि आप जैसे हज़ारों लाखों लोग इंडिया में उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनका सिर्फ पूरा घर का खर्चा, काम का खर्चा लोगों के इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस और डोनेशन से चलता है। तो अगर आप मान लीजिए आज हमारे देश में 1 लाख मीडिया है, तो मैं एक बहुत रफ एस्टिमेट बोल रहा हूँ मीडिया पर्सन में से 20 से 30 हज़ार या 25 हज़ार या 15 हज़ार लोग एक सेक्शन है जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, और उसका इंडिपेंडेंस इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि कहाँ से चलेगा उसका। मीडिया बायस क्यों है, मैंने ये इंडिपेंडेंस के उसके मैं कवर हो गया। फिर एक क्वेश्चन था क्या रीच बढ़ाने के लिए रीच बढ़ाने के लिए क्या करना है। देखिए मैं ये इट्स अ मिक्स्ड गेम। कई बार आप बहुत अच्छा चीज़ लिखेंगे वो रीच नहीं बढ़ेगा, कई बार आपने आज लिखा और 4 साल बाद वो एकदम से ऐसे वायरल होगा कि आपको लगेगा कि 4 साल तक ये था कहाँ ये इन्फॉर्मेशन। जैसे आपका सर आपका था ना, आप लिखते हैं, आप मान लीजिए माइक्रोसाइट पे, अब जैसे इंडिया टाइम्स माइक्रोसाइट बना रहा है, यू नेवर नो आपका एकदम से वायरल हो जाए, बिकॉज समटाइम्स एक आइडिया के लिए एक स्पेस और एक उसका समय और उसका एक पुश टाइम्स के हिसाब से आता है। तो देयर इज़ नो वन सोल्यूशन, एक सोल्यूशन किसी को भी नहीं मिलेगा। नो वन सोल्यूशन विल फिट एवरी प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग योर रीच। यू हैव टू मिक्स एंड मैच। जैसे हृदय ने बताया कि इन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, पर टाइम नहीं था। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मीडिया शादी के पंडाल की तरह है। अगर इमरती का ऑर्डर है तो इमरती बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो सुबह 9 बजे वो सेट कर देते कि आज तो इमरती खरीदनी है, तो अब बेचारा जो स्टोरी लेके बैठा हुआ है, यू वर्क फॉर ए वीकली शो एंड फ्राइडे आपको दुखी है यार, आज कुछ ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ उसी पे चले। तो 6, 7, 8 बजने तक एडिटर कहता है तुम्हारा प्रोग्राम क्या सैटरडे को चल सकता है, रात को शाम को 6 बजे। और वो रिपोर्टर का चेहरा लटक जाएगा, उसने इतनी मेहनत की है, रिसर्च की है, 10 लोगों से मिला है, 4 लोगों को बोला है कि सर आपकी स्टोरी तो 9 बजे आएगी, फ्राइडे को आएगी, प्राइम टाइम पे आएगी। तो उस दिन किसी ने, शिल्पा शेट्टी ने कुछ कह दिया है, कुछ हो गया मतलब इस तरह का। अब पूरा मीडिया उस पर, तो वो इमरती का ऑर्डर कहता हूँ मैं उसको, कि अब ऑर्डर जो है वो इमरती का है, तो अब जलेबी अब आप पेड़ा बनाते रहो, वो बिकना नहीं है उस दिन। सो द पीपल हु आर सेंडिंग द स्टोरीज थ्रू जर्नलिस्ट शुड ऑल्सो सी कि अभी माहौल क्या है। तो इसीलिए अच्छा माहौल क्या है से मुझे याद है, मेरे एक दोस्त है, वो न्यूज़ 24 में माहौल क्या है प्रोग्राम बनाते हैं, और उन्होंने इतना दिमाग लगा के उस प्रोग्राम का नाम रखा। बोला हृदय भाई अगर मैं प्रोग्राम का कोई ऐसा नाम रख लेता ना तो इस टाइप के प्रोग्राम में जा पाता, और इस टाइप के में मुझे नहीं भेजते। अब माहौल क्या है प्रोग्राम रख लिया, बाढ़ आए, बारिश आए, शादी होए, कुछ होए, माहौल क्या है उसके प्रोग्राम का नाम है। चाहे चुनाव होए, बर्फ गिरे, आतंकवादी हमला हो, कुछ हो, उसने नाम ऐसा छांट लिया अपना माहौल क्या है, तो उसको रोक ही नहीं सकता कोई। कह रहा सर मैं जा रहा हूँ, वो तो नहीं तुम्हारा मेरा प्रोग्राम माहौल क्या है, माहौल क्या है। तो सुख दुख से वो निराकार ब्रह्म हो गया है। तो ये चीज है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू थिंक, बिकॉज दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। यू हैव टू कीप द ह्यूमर अलाइव, बट यू हैव टू कीप इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम. All right, so I think it is a wonderful, engaging discussion that we had with the media, and I think from the morning we had a very different context with the spiritual leaders and what is their role. This is about the media and what is media roles in climate change, and I think there's a lot to do from both the sides. If I can summarize, media also need to kind of up their discussions about the climate change, and the public also needs to consume about the climate change, because it is everybody's life that is going to affect. Such a wonderful thing. May I request you all of to give a big round of applause to all the people.
And can I say one line to the students, because I am also a father of 2 young kids, that always be with the people who are better than you. This line I heard when I was in school from the mouth of Harsh Bhogle, who is a commentator. जब तक आप बच्चों अपने से बेहतर लोगों के साथ रहोगे, बेहतर लोगों के साथ बिना किसी bias के, you will improve. And that is the only way you can improve. Don't sit with the people who are rotting, who are thinking and who are this thing. So it is very important, and keep your mind open. Things were difficult always, they will remain difficult, and we have to survive them. So let me thank once again the India Times for being a partner in this particular session, and I hope in the microsite that we are going to create about climate change and energy Swaraj, I hope many of you will become the writer, and will be happy to post this and help everyone. So thank you very much. We are running out of time. There are 2 more sessions to happen. There's a small presentation. There's one person who has surrendered electricity connection and gone 100% on solar. He is going to share his story, and then we have the Shell Game Changer Award that we are going to announce before lunch. So stay tuned. I would like to thank everyone, and like to request all token the of guests appreciation. to come forward for the photograph. Yeah. First, let us take the photo, and then we'll come. Here we have the climate clock that we have all been. So we can, if we can pose, and if we can lift it, if we can switch on the light. No, there's a climate clock. Thank you so much. Can we have a big round of applause for all the speakers? Thank you so much. It was so wonderful to listen to you. Thank you very much. Over to you, Ajay. Great. Thank you so much. It was a wonderful session, right? Yes? Thank you. So with that, because this conference focuses on action, and especially as a